See, as you know, the time period is classified into two categories: short run and long run. This short run and long run is not classified on the basis of time period. Means 6 months is short run, 1 year is short run, 2 year is short run, or beyond that long run. There is no specific criteria for short run and long run. We can say that short run is the time period in which one factor is variable, and all other factors are fixed. All other factors are fixed. Long term is the time period in which all factors are variable. Means we are able to change each and every factor of production, but from study point of view, this one variable factor is land, labor, capital, entrepreneurship. You have many factors, but this one variable factor is labor here. And the constant factor or fixed factor is capital. Means the study of long run and short run only based on two factors, labor and capital. In short run, labor is variable and capital is fixed, and in long run this all factor means labor and variable. While studying the data, we are ignoring all other factors. Here labor and capital is fixed. Then question arises, what type of profit a firm earn in short run and long run? First, understand monopoly firm. Monopoly firm is the firm selling homogeneous or heterogeneous product, but there is only one seller and large number of buyer. One thing. Second thing, there is no close substitute of product available in the market. Means the product of the seller is the only one which is satisfy the need of the consumer. That's why we are saying this particular market monopoly. If we are talking about monopoly, rest thing we will discuss in the marketing chapter. I am only telling about you the profit. If we are talking about monopoly in short run, there is normal profit, abnormal profit, and normal loss. As you know, normal profit means you are able to cover the only variable cost and fixed cost. Means this is the situation of no profit, no loss, because we can assume that normal profit is the part of the cost of the production. Abnormal profit is when your revenue or your price is more than your cost. Normal loss is when your cost is more than your price. Monopoly can earn normal profit, abnormal profit, and normal loss in short run, and abnormal profit in long run. Abnormal profit in long run. Is this clear? In short run, monopoly can earn normal profit, means nominal profit to run a business, which is a part of the cost. Second is abnormal profit, means price of the product is greater than cost. Third one is normal loss, when cost of the product is greater than price. Because here is no close substitute and this product satisfy the need of that particular product. That's why monopolist ready to earn normal profit and normal loss in short run, but due to the nature of the commodity they will earn abnormal profit in the long run. If we are talking about perfect market, the scenario is same in case of perfect market. Means in perfect market the profit situation may be normal, abnormal, and normal loss. But in long run
the perfect market earn normal profit. Anybody tell me why in perfect market firm earn normal profit in the long run? Because perfect market is the market in which large number of firms selling the homogeneous product, means the product of each and every firm is same. There is no difference between the product of one company and another company. And second thing is, in case of perfect market, firm is price taker, means industry decide the price and firm accept that particular price. But in monopoly, firms are price maker. Firms are price maker. They decide the price of their commodity. There is also the price differentiation of various degrees. Later on we will discuss there are lots of degree of price discrimination in monopoly. But price discrimination and price change is not available in case of perfect market. Because there are large number of firms in the market and there is free entry and exit, there is no restriction in case of perfect market. Therefore, if the market is profitable, large number of firms enter in that particular market and convert the abnormal profit into normal profit. If there is loss in the market, lots of firms exit from the market. They leave the market because the market is not profitable. Then the profit of all those firms divided among the existing firm, then again the situation convert into normal profit. Then after that, monopolistic. In case of monopolistic, there are large number of firms but less than perfect market and more than monopoly firms. In this situation also there are three types of profit situation. One is normal profit, another is abnormal profit, and the last one is normal loss. As you can see, in case of monopoly, perfect market and monopolistic market, these three situations are same for each and every type of market, but the long term situation is different. In monopolistic market also there is no normal profit. And from MCQ point of view, remember one thing, in monopolistic market there is known price competition. Means no firm is competitive for price. They can charge high price by conveying to the consumer that the product provided by them is better quality, better feature, more updated technology is used in the manufacturing of the product. According to that, they can charge high market. If you have any question, then you can ask. Clear है? Pooja, Hema, all clear about these basic things? Then next one is oligopoly. In case of oligopoly, if we are talking about oligopoly, in oligopoly there is no fixed situation of normal profit and normal loss and abnormal profit, because everything is depend on competitor. यानी कि आपकी जो राइवल फर्म है, वो राइवल फर्म किस तरह से बिहेव करती है उसके हिसाब से आपको अपने प्राइस अप एंड डाउन करने पड़ते हैं. यानी कि ऐसी मार्केट जिसमें लेस देन 12 फर्म्स हैं या लेस देन 10 फर्म्स हैं, और यू कैन सी इक्वल टू 10 और 12 और उससे कम फर्म्स होती है, वो ओलिगोपोली होती है. इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस कंपटीशन होता है. यानी कि आप अपने फर्म का प्राइस तो डिसाइड करते हो, अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते हो, प्राइस मेकर जरूर हो, लेकिन आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो सारी की सारी कॉम्पिटिटर क्या करता है. जैसे आपने देखा है एयरटेल, वोडाफोन और एयरटेल है, वोडाफोन है और जियो है. अभी तो तीन ही ये कॉम्पिटिटर हैं. अगर एक कोई टैरिफ का प्लान चेंज करता है या कुछ नया लेके आता है, दूसरे को भी लाना पड़ेगा, वरना वो अपने कंज्यूमर को क्या कर देगा, लूज कर देगा अपने कंज्यूमर को. क्लियर है ये चीज़? डायग्राम पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है कि कौन सी सिचुएशन है
और एक मैंने बताया जो स्पेशल फीचर है, बाकी चीज़ें तो कॉमन ही होती है। मोनोपोली में स्पेशल फीचर होता है प्राइस मेकर और एक प्राइस डिफरेंशिएशन। परफेक्ट मार्केट में होता है प्राइस टेकर, परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज जीरो। जो बेसिक फीचर है उसको ध्यान रखिए। और ये सिचुएशन सेम है, ओलिगोपोली सेम नहीं होता। ओलिगोपोली में क्या होता है, किंक्ड डिमांड कब होता है, यानी कि कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन चेंज होती रहती है, इसलिए डिमांड कर कैसा होता है, किंक्ड। किंक्ड कैसा बनता है, इस तरह का डिमांड कर होता है जो कि चेंज होता रहता है। जैसे जैसे कॉम्पिटिटर पॉलिसी चेंज करते जाएंगे, डिमांड कर भी इसमें कोई फिक्स नहीं है, वो चेंज होता है। जो कि किसने दिया है, स्वीजी ने दिया है। ये जो किंग डिमांड कर का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया है, स्वीजी ने दिया है। ये हम मार्केट में इनको एक बार एमसीक्यू फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे। बिसाइड दिस इतना क्लियर है। अभी आप इसी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के कंसर्न में सिर्फ प्रॉफिट पूछ रहे थे ना, डायग्रामेटिक वाला तो नहीं पूछ रहे थे ना, ठीक है ना। क्योंकि जब आप बेसिक भी पढ़ रहे हो, इसमें एक तो ये याद रखो कि इसमें इलास्टिसिटी परफेक्ट है, कि इसमें जो है आपकी इलास्टिक स्टैटिक्स है कि किस तरह से है, इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है। अगर हम परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट में कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है, चेंजेस होते रहते हैं, यानी कि इसमें इन्फिनेटिव की जैसी होती है, प्राइस बदले या ना बदले डिमांड कम ज़्यादा होती रहेगी। जो मोनोपोली होता है, मोनोपोली में क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है लेस देन 1, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते इसमें। और अगर मैं मोनोपोलिस्टिक की बात करती हूँ, इसमें इलास्टिसिटी होती है मोर देन 1। और ओलिगोपोली में तो मैंने आपको बताया इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। मतलब हम देखेंगे ना, इकोनॉमिक्स में इतना कुछ है। अगर आप बैंकिंग वाला पार्ट भी लेते हो, सब इकोनॉमिक का है, माइक्रो है, मैक्रो है, इंडियन इकोनॉमी है, बहुत सारी चीज़ें। इसलिए मैंने कहा कि जो इजी चीज़ें हैं वो कोशिश करिए कि आप पढ़िए, डाउट है मुझसे पूछिए, और जो जो टफ टॉपिक है वो तो मैं साइड बाय साइड आपको कराऊंगी। स्टिल जो आपको पढ़ने के लिए दिया उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी पूछ लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ बताइए मुझे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। नोट्स आपने पढ़े हैं तो एक ये डिफरेंस मुझे क्लियर करिए कि आप क्या समझ पाए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। उसमें एक कंसेप्ट आया होगा, बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, और क्वांटिटी डिमांडेड में उल्टा बता रहे हो आप। क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, कांस्टेंट। और चेंज इन डिमांड में प्राइस फिक्स रहता है और अदर फैक्टर चेंज होते हैं। चलिए ये भी मैं एक बार कन्वे कर देती हूँ, क्योंकि है ना कि पॉसिबल नहीं है कि सारे कंसेप्ट क्लियर करें, बट अपने बेसिक बहुत जल्दी से क्लियर करिए आप, बहुत ज़रूरी है ये। क्योंकि कई आंसर एमसीक्यू कितना रट सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें भी कि या किसी की भी आप चीज़ें देखोगे, कोई ना कोई किसी ना किसी कंसर्न में अगर काम कर रहा है तो वो चीज़ हेल्पफुल होती है। जैसे मैं अगर पढ़ा रही थी कोचिंग सेंटर में तो मेरे लिए वो हेल्पफुल हुआ, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए, वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुए। हम इतना अच्छा अपने लिए नहीं पढ़ते जितना दूसरों के लिए पढ़ते हैं जब हम पढ़ाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि कंसेप्ट बेस क्लियर करो। देखिए, दो कंसेप्ट मैंने आपको बताए, एक होता है चेंज इन डिमांड और एक होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आप समझ के नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो चेंज इन डिमांड है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे प्राइस होता है फिक्स, और मैं अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट में बताऊँ आपको। और अदर फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल, अदर फैक्टर चेंज होते हैं। और यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस वेरिएबल होता है, चेंज होता है यानी कि, और अदर फैक्टर क्या होते हैं जो डिमांड को इम्पेक्ट करते हैं, वो होते हैं फिक्स। इसे चेंज इन डिमांड को हम बोलते हैं
मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। ये सप्लाई है तो मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, डिमांड है तो मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। और इससे क्या बोलते हैं, मूविंग ऑन द सेम डिमांड कर्व। इसको मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व यानी कि एक जगह से हिल जाता है ये, या इसको कई बार मूवमेंट की जगह बेटर वर्ड यूज होता है शिफ्ट। मूवमेंट टेक्निकली इसके लिए यूज नहीं होता, मोस्टली इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, शिफ्ट, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और इसके लिए यूज होता है मूवमेंट इन डिमांड कर्व। वो कैसे होता है, सी ये डिमांड कर्व है, प्राइस फिक्स है, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस। अदर फैक्टर की वजह से मान लो डिमांड बढ़ गई है तो ऊपर की तरफ मूव हो जाता है। प्राइस सेम है और डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। प्राइस सेम है, डिमांड इंक्रीज हो गई सेम प्राइस पे, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। और अगर अदर फैक्टर की वजह से जो कर्व है डाउनवर्ड स्लोप में शिफ्ट होता है, डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। और मूवमेंट इन डिमांड कर्व क्या होता है, सेम ही डिमांड कर्व पे। सपोज ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस जो है बढ़ गया, किसी भी कारण से प्राइस अगर बढ़ गया तो डिमांड क्या हो गई, डिमांड हो गई कम। प्राइस बढ़ गया, डिमांड हो गई कम, इसके क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। याद हो तो, आपने पढ़ा हो तो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक रीडिंग लगानी है, उसको समझिए ताकि साथ के साथ मुझसे पूछो, वरना तो फिर क्लास लेने के बाद भी सेम ही सिचुएशन रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और अगर प्राइस कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, प्राइस डाउन होने की वजह से डिमांड क्या है, बढ़ गई, प्राइस P2 हो गया और डिमांड हो गई Q2, तो इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ये जो चेंजेस है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्योंकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये बताइए क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब ऐसे मेरा वो देने का मोटो यही है कि आप समझ के करो, उसको रेटिंग लगा के उसमें से जो मेन चीज़ है वो अपने दिमाग में सेट भी करनी है। वो देखने में, क्योंकि एक एक स्लाइड में एक एक दो दो चीज़ें लिखी होती है, इसलिए देखने में वो पेज ज़्यादा लगते हैं। पेजों को देख के नहीं घबराना है, उसको कंसेप्ट को समझिए। वो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन दी हुई ताकि आपको बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े, यहाँ से ही आपको चीज़ें कन्वे हो जाए। वरना पहले यहाँ से पढ़ोगे फिर उसे बुक से पढ़ोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है कि आप वहाँ से रीड करके इस चीज़ को समझ पाए। क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं अपने MC। स्टिल अभी भी कोई टॉपिक है तो आप पूछ सकते हैं, आपने तो पूछा नहीं, मैं ही अपने डाउट पूछे जा रही हूँ आपसे। डिमांड कर्व इज अ ग्राफ ऑफ द रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड द। अब देखिए ये समझ आ गया तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब सीधा सीधा नहीं पूछा ना, अगर आपसे ये पूछता है डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ग्राफ का रिलेशन है या फिर शेड्यूल का रिलेशन है, अगर प्राइस के फ्लैक्चुएशन से रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, price elasticity is defined as a percentage change in price that result from a percentage change in, ये प्राइस दो बार रिपीट हो गया। प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज अ परसेंटेज चेंज इन डैश दैट रिजल्ट फ्रॉम अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन किस में होता है, किसी भी, देखिए अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर सिर्फ प्राइस के कंसर्न में हम बात करते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब क्वांटिटी डिमांडेड आपको समझ आ गया तो अपना आप ही अगर पजल भी करता है क्वेश्चन तो खुद से आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं।
डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट. डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है डिमांड? डिमांड फंक्शन क्या कहता है? अब आपने अगर नोट्स पढ़े तो उसमें पढ़ा होगा. डिमांड फंक्शन क्या कहता है? डिमांड फंक्शन कहता है द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज इम्पैक्टेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ द क्वांटिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. इस तरह से इक्वेशन पढ़ी होगी, नीचे एक्सप्लेनेशन भी थी. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर. तो आपसे सीधा अगर डिमांड के इम्पैक्टेड फैक्टर की बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें आती है. लेकिन यहाँ पे इन सब में से क्या अवेलेबल है? ओनली प्राइस. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. अगर बाकी सारे ऑप्शन भी होते तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाता. मान लो सारे ऑप्शन दिए होते तो उसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव होता. डिमांड के जितने भी डिटर्मिनेंट हैं, सारे डिटर्मिनेंट मिला के उसके ऊपर जो कंबाइन इफेक्ट डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कंबाइनली कहते हैं डिमांड फंक्शन. ये जो हम इस तरह से लिखते हैं सारे डिटर्मिनेंट का एक कॉम्बिनेशन बना के, इसको बोलते हैं हम डिमांड फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द sensitivity of sale to change in particular causal factor, sensitivity of production to change in particular cost, value of price and cost, value of product, volume of product. अब आप क्वेश्चन देखोगे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता. क्वेश्चन में आपकी अंडरस्टैंडिंग है तभी आप कर पाओगे. सॉरी, बी. इलास्टिसिटी मेजर्स, कंफर्म कर लीजिए. देखिए, अगर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो सेंसिटिविटी ऑफ सेल टू चेंज इन अ पर्टिकुलर कैजुअल फैक्टर. आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया हुआ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेकिन फैक्टर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है? प्रोड्यूसर के. अगर इसको जिसको हम अगर हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एनी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड. यानी कि ऊपर का सेम रहता है, डिमांड ही रहता है, नीचे डिटर्मिनेंट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर. इस तरह से नीचे के जो जो फैक्टर है, चेंज इन प्रेफरेंसेस, नीचे चेंज होता रहेगा, ऊपर क्या रहता है? डिमांड ही रहती है फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन सारे ऑप्शन प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू है तो कंज्यूमर के लिए वो डिमांड है, कंपनी के लिए क्या है? वो सेल है. तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसी चीज़ को हम डिफाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? परसेंटेज और सेंसिटिविटी चेंज इन सेल, यानी कि उसकी तो सेल चेंज हो रही है, कंज्यूमर डिमांड क्रिएट कर रहा है, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन कैजुअल फैक्टर, यानी कि वो सारे फैक्टर जो कि किसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं? सेल के ऊपर, जिसकी वजह से सेल क्या होती है? फ्लैक्चुएट होती है. तो आपके पास जो इलास्टिसिटी का कंसेप्ट है उसी को यूज करके आपको इसका आंसर निकालना था. ये बताइए क्लियर है कि नहीं? देन एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज. इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है? ये तो हमने कल भी किया था डिटेल में. ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल. ये तो रिपीटेड हो गया, ये शायद उसमें आया था नोट्स वाले में. इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई. कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड. कौन कौन से एक्सेप्शन है? यानी कि ऐसे एक्सेप्शन जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स, जिनको वेबलन गुड्स के नाम से भी जानते हैं, गिवन गुड्स. इन सब के ऊपर जो लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई नहीं होता. ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. डैश इज नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है.
ठीक है, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज, आपने 3 तरह की डिग्री पढ़ी होगी। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। पहली डिग्री आपने क्या पढ़ी, इलास्टिसिटी इज ज़ीरो। इलास्टिसिटी ज़ीरो कब होती है, जब आपका जो डिमांड है प्राइस अप हो या डाउन हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, तो इलास्टिसिटी क्या होती है, ज़ीरो। कैसे गुड्स के लिए ऐसी इलास्टिसिटी होती है, नेसेसरी गुड्स। भाई आप नेसेसरी गुड्स कंज्यूम कर रहे हो तो उसकी प्राइस अप एंड डाउन होने से आपकी डिमांड के ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, शुगर। ऐसा तो है नहीं कि भाई नमक सस्ता हो गया तो आप 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच खाना शुरू कर दोगे, या शुगर सस्ती हो गई तो उससे ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप एक क्वांटिटी में लेते हो जो कि आपके जीवन के लिए ज़रूरी है। वो सारे नेसेसरी गुड्स की जो इलास्टिसिटी है वो क्या होती है, ज़ीरो। इसके अलावा ऐसी सारी चीज़ें जिस पर आप अपनी इनकम का बहुत स्मॉल पोर्शन खर्च करते हैं, ऑल गुड्स ऑन विच यू स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ योर इनकम, स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ योर इनकम। फॉर एग्जाम्पल मैच बॉक्स, माचिस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं आती कि उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हो। कोलगेट, वो भी इतना महंगा नहीं आता कि उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो। तो इनकी डिमांड के ऊपर प्राइस के अप एंड डाउन होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी इलास्टिसिटी होती है परफेक्टली इलास्टिक, जिसे परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। कैसे लिखते हैं उसको, ई पी इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, परफेक्टली इलास्टिक। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक प्राइस फिक्स होता है और फिर भी डिमांड फ्लैक्चुएट होती रहती है। प्राइस फिक्स है और डिमांड चेंज होती रहती है। ऐसे गुड्स का आप एग्जांपल नहीं दे सकते हैं कि प्राइस फिक्स है और डिमांड चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये इकोनॉमी की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और मोस्टली जो परफेक्ट की सिचुएशन है वो इमेजिनरी सिचुएशन है, सिर्फ उसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ही यूज़ किया जाता है। तीसरा क्या है, ई पी इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें बिल्कुल जो डिमांड कर्व है सेंटर में होता है, और इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के इक्वल है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, 1। यानी कि अगर प्राइस में 10% का चेंज हुआ है तो डिमांड भी 10% बदल जाएगी। प्राइस में 20% की कमी आई है तो डिमांड में भी 20% की कमी आ जाएगी। अगर किसी प्रोडक्ट में ये फंडा अप्लाई होता है तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, 1 होती है। इसके भी कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं होते, इट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। लेकिन बाद में अभी डिग्री बताने के बाद कौन कहाँ सेट हो सकता है वो हम एस्टिमेशन लगाएंगे। फिर होता है ई पी इज लेस देन 1। ई पी इज लेस देन का मतलब है ये जो आपका कर्व है थोड़ा नीचे होगा, कम स्लोप होगी इसकी, और इसमें परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में 10% चेंज होगा तो उसकी वजह से डिमांड में 10% से कम चेंज होगा। अगर प्राइस में 20% इंक्रीज होगा तो डिमांड में जो इंक्रीज होगा 20% से कम होगा। ऐसी सारी डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन 1। फिर एक होता है ई पी इज ग्रेटर देन 1। इसमें कुछ इस तरह से होता है, सेंटर से थोड़ा ऊपर रहेगा कर्व, और उसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर प्राइस में 10% चेंज हुआ है तो क्वांटिटी में 20% चेंज होगा। अगर क्वांटिटी में 20% चेंज हुआ है तो अगर प्राइस में 20% डिक्रीज हुआ है तो क्वांटिटी में मोर देन 20% चेंज होगा, तो वो होता है ग्रेटर देन 1। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर आप इन दोनों के साथ डील कर रहे हो तो आपको प्राइस सोच समझ के करना है, क्योंकि अगर आप ग्रेटर देन 1 के साथ कर रहे हो तो प्राइस में थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो जिनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है
उनका प्राइस ईजिली इंक्रीज नहीं होता। प्राइस डोंट इंक्रीज ईजिली, क्योंकि प्राइस जरा सा भी इंक्रीज हुआ तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो सकती है, क्योंकि जितना प्राइस आप चेंज करोगे डिमांड पे उससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जिनकी लेस देन 1 है उसमें प्राइस इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्राइस डिक्रीज से फ़ायदा होगा या नहीं। प्राइस डिक्रीज से फ़ायदा होगा या नहीं। इंक्रीज तो कर सकते हो, इंक्रीज में इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डिक्रीज से प्रॉब्लम है। प्राइस डिक्रीज का एडवांटेज होगा या नहीं ये देखना होता है। कई बार आप क्या सोचते हो कि भाई प्राइस कम करके अपनी डिमांड बढ़ा लेंगे, लेकिन आपकी अगर प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइस कम करो तो उससे डिमांड भी आपकी बढ़ जाए। देन आफ्टर दैट इन्फिनेटिव में तो बहुत ही सोच समझ के करना है। यहाँ तो आपकी डिमांड जीरो भी हो सकती है, बिना प्राइस में चेंज करे फ्लैक्चुएशन हो रहा है। अगर आपने प्राइस चेंज कर दिया तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन हो जाएगा। तो अगर हम गुड्स की वैरायटी के बेस पे इसके ऊपर कमेंट करते हैं तो जीरो किसकी होती है? नेसेसरी गुड्स की। इन्फिनेटिव आपको बताया इमेजनरी सिचुएशन है। जो हमारे पास मीडियम गुड्स होते हैं जो कि ड्यूरेबल गुड्स है, मोस्टली जिनकी डिमांड को आप पोस्टपोन कर सकते हो, उनकी इलास्टिसिटी यूजुअली 1 होती है। जो आपके लग्जरी गुड्स है उनकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है लग्जरी गुड्स की। और जो कंफर्टेबल गुड्स है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी की डिमांड पोस्टपोन कर सकते हो तो इनकी इक्वल टू 1 होगी। और अगर डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते तो अगर आप डिमांड पोस्टपोन कर सकते हो तो आपकी इक्वल टू 1 होगी। अगर डिमांड पोस्टपोन नहीं कर सकते तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। और अगर बीच की कोई सिचुएशन है कि आप पोस्टपोन भी नहीं है और इतना एमरजेंसी भी नहीं है किसी प्रोडक्ट के लिए, एमरजेंसी भी आपको नहीं है कि आपको अभी खरीदना है, तो वहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1। तो यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की जो इलास्टिसिटी है, जो कि लाइफ के लिए भी ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको हरी नहीं है उनको खरीदने की, उन सब की इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन 1। मोस्टली इसमें ड्यूरेबल गुड्स आते हैं, जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बताइए क्लियर है कि नहीं? ये आपने सारा पढ़ा होगा उसमें, तो उसमें सारा ये बताया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा था, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लग्जरी गुड्स इज क्या होगी? मोर देन 1। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड किसमें? ये मुझे लगा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये पहले आ चुका है, या तो किसी प्रीवियस ईयर पेपर में 2 बार आ गया होगा, अलग अलग पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन है। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गिवन पैराडॉक्स, डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। गिवन पैराडॉक्स इज द आंसर। सी, जो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटी है और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ये तीनों किसके रीजन है? ये तीनों रीजन है जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व की डाउनवर्ड स्लोपिंग के, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रीजन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग रीजन। जो डाउनवर्ड स्लोप है, या फिर आप कह सकते हो कि जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है? डिमांड कर्व कैसा होता है? इस तरह से होता है या ऐसे होता है? इस तरह से नहीं होता। तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इनकी अगर हम रीज़न की बात करें या डिक्रीजिंग की बात करें, जो डिमिनिशिंग हो रहा है उसके रीज़न होते हैं। अगर कोई पूछे व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, तो कौन कौन से रीज़न है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, और इसके अलावा एक क्या होता है? इनकम इफेक्ट। इनके अलावा ये 3 फैक्टर तो ये होते हैं, प्लस चौथा फैक्टर क्या होता है? इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ मिड पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कैसी होगी? 0, इक्वल टू 1, मोर देन 1, लेस देन 1। तो ये हमें ये डायग्राम अपने दिमाग में रखना है। मिड में क्या होती है? इक्वल टू 1। ऊपर की तरह जाओगे
और नीचे की तरफ जाओगे उसका ध्यान रखना, ऊपर बढ़ती है और नीचे क्या होती है, कम होती है। बीच में 0, फिर ग्रेटर देन 1 इन्फिनेटिव, नीचे लेस देन 1 और 0। एक हमारा वो डायग्राम होता है, उसको भी ध्यान रख सकते हो, इस तरह से होता है इलास्टिसिटी का, जो सारी इलास्टिसिटी की डिग्री को ध्यान में रखते हैं। बीच में क्या होता है, ई पी इजिकल टू 1, नीचे होता है ई पी लेस देन 1, ई पी इजिकल टू 0, ई पी ग्रेटर देन 1, ई पी इन्फिनेटिव। तो उस बेस पे ही, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते हो तो बढ़ता है, नीचे की तरफ कम होता है, उससे ध्यान रखना। यहाँ पे तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, हो सकता है ऊपर या नीचे भी दिया हो। इससे एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आर्क मेथड की बेस पे इलास्टिसिटी क्या होती है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ आर्क मेथड और at any point on the demand curve? क्या फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी का? लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। ये ना कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखा करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स इतनी बड़ी है, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं, गिनती के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहीं से भी उठाए जा सकते हैं वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन? आपको पता है प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इनपुट्स और आउटपुट के रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है कि भाई कितने इनपुट लगा के कितने आउटपुट हुए, वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन के कंसर्न में इसमें से कौन सी बात सही नहीं है? ये फ्लो कंसेप्ट है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है, क्वालिटी ऑफ इनपुट्स है, स्टेट ऑफ इनपुट्स है। जहाँ पे आइडिया नहीं लगे गैस करने की कोशिश भी किया करो, और ये देखा करो कि आपकी गैस करे हुए आंसर भी कितने सही आते हैं। देखिए प्रोडक्शन फंक्शन में हम ये देखते हैं कि भाई क्या टेक्नोलॉजी है, क्या इनपुट्स है, उसकी क्वालिटी नहीं मेंशन करते। हम क्या मेंशन करते हैं? क्वांटिटी। इनपुट्स की क्वांटिटी करते हैं, क्वालिटी नहीं करते। कितनी क्वांटिटी है, क्या स्टेट है, कैसे इनपुट्स है, क्या टेक्नोलॉजी है। और क्योंकि प्रोडक्शन कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फ्लो कंसेप्ट। दो तरह के कंसेप्ट होते हैं, एक फ्लो होता है, एक स्टॉक होता है। अगर किसी चीज़ को आप एक फिक्स टाइम पीरियड पे मेज़र करते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट, वो क्या होते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। नेशनल इनकम हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में मेज़र होती है, और ऐसी चीज़ तो थ्रू आउट द ईयर चलती रहती है और प्रोसेसिंग काउंट भी होती रहती है, उसे कहते हैं फ्लो कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन फंक्शन फ्लो है, टेक्नोलॉजी इसमें मेंशन होती है, स्टेट ऑफ इनपुट्स होता है, और क्वालिटी नहीं होती। क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। क्वालिटी की जगह होना क्या चाहिए था? क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स। तो हमसे नोट पूछा है, नोट हमारा क्या हो गया? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी इज द पाइवोट अराउंड विच द इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। मनी वो चीज़ है जिसके पीछे, जिसके चारों तरफ इकोनॉमी घूमती है, वो एक इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर है। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? आपको पता है आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? एल्फ्रेड मार्शल ने। ये तो क्रैम करने वाली चीज़ ही है। इन विच मार्केट स्ट्रक्चर द डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि मोनोपोली में कैसी होती है? परफेक्ट इलास्टिक। किसमें होती है? परफेक्ट कंपटीशन में। मोनोपोली में अगर हम बात करें तो कैसी होती है? लेस देन 1। और मोनोपोलिस्टिक में बात करें तो मोर देन 1। अगर आपको वैसे भी आइडिया ना लगे ना, तो उसके आप फिगर की तरफ जाइए। देखिए मोनोपोली में क्या होता है? इस तरह की होती है MRAR, यानी कि थोड़ा सा इसकी स्लोप जो होती है स्टैटिक सी रहती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, चेंज कम होगा। लेकिन अगर आप मोनोपोलिस्टिक की बात करोगे, उसकी स्लोप थोड़ा सा ऐसे होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा चेंजेस आते हैं। MRAR इससे थोड़ा ज़्यादा फैली हुई होती है एज़ कम्पेयर टू मोनोपोली। और ओलिगोपोली में तो कुछ फिक्स होता ही नहीं है,
और ड्यूपोली क्या होती है? ड्यूपोली ओलिगोपोली की एक फॉर्म है ये। ओलिगोपोली मार्केट की बहुत सारी फॉर्म होती हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाते हैं। ड्यूपोली भी उन्हीं में से एक है। देखिए मोनोपोली में जहाँ एक आदमी पूरी मार्केट को कैप्चर करके बैठा हुआ है, ड्यूपोली में क्या होता है? दो होते हैं। मोनोपोली में एक ही होता है, एक प्रोडक्ट को बेचने वाला, उसका क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता। और ड्यूपोली में कितने सप्लायर होते हैं? 2 सप्लायर। ये बेसिक भी पता रहना चाहिए, इसके ऊपर भी कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ गुड्स इज कॉल्ड utility derived from the consumption of one extra unit of a goods is called total utility, marginal utility. Yes, marginal utility is the right answer. Then प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन किस किस में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है? कॉस्ट एंड प्रॉफिट, इनपुट आउटपुट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्राइस एंड डिमांड। अभी पीछे मैंने बताया था इनपुट एंड आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें हम यही देखते हैं कितने इनपुट लगा के कितना आउटपुट हो जाएगा। द थ्योरी दैट सप्लाई क्रिएट, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। एक ग्रेजुएशन की बुक से जब इकोनॉमिक्स के उठाता है तो इस तरह के क्वेश्चन ही वो उठाता है छोटे छोटे। द थ्योरी दैट सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड एंड देयरफॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इज नेचुरल सिचुएशन इज कंसर्न विथ, ठीक है ना। बाकी जैसे ये थ्योरी होती हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन ये छोटी मोटी गिफन पैराडॉक्स, सेज लॉ ये पूछ लेता है पीजीटी कॉमर्स में ही, क्योंकि ये केन्स थ्योरी वगैरह का बेसिक ही पूछता है। केनेजियन थ्योरी का आपको पता होगा कि बेसिक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई वैसी चीज़ें, क्योंकि थोड़ा बेसिक इनका 11th-12th में पढ़ा देते हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाते थे। थोड़ा सा इनके ऊपर भी हमें क्या करना है, फोकस करना है। सेज लॉ इज द राइट आंसर। जब भी ये वर्ड आए सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, किसी भी फॉर्मेशन में आ जाए सेज लॉ ही होगा। गिफन पैराडॉक्स के ऊपर भी मैंने आगे क्वेश्चन अलग सब अलग डिफरेंट भी बनाया हुआ है। व्हाट डज चेंज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इनमें से कौन सी चीज़ इकोनॉमिक ग्रोथ को बदलेगी? इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, माइंडसेट लोगों का, नेशनल इनकम, ऑल ऑप्शन आर रोंग। यस, जितनी ज़्यादा नेशनल इनकम होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ग्रोथ होगी। अच्छा, दो कंसेप्ट होते हैं इंडियन इकोनॉमी का, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। दोनों में फ़र्क बता सकते हो? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? अगर नेशनल इनकम, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज होती है तो ग्रोथ होती है, लेकिन अगर नेशनल इनकम में कॉन्टिन्यू ग्रोथ होता है, एक तो कॉन्टिन्यू ग्रोथ हो प्लस पर कैपिटा इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, वो किसको बर्थ देती है? डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ग्रोथ इज अ स्मॉलर कंसेप्ट। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? लोगों का लेवल ऑफ यू कैन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है। लोग जो समेशन ऑफ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, स्टैंडर्डाइज कमोडिटी वो परचेज कर पा रहा है उसकी। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी ग्रोथ ये कहते हैं इकोनॉमी में नेशनल इनकम बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई, लेकिन हो सकता है कि जितनी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है उतनी ही पॉपुलेशन भी बढ़ जाए, या उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई तो पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, तो वो सिर्फ ग्रोथ रहेगी। डेवलपमेंट तभी होगी जब ईच पर्सन की एवरेज इनकम इंक्रीज होगी। अगर एवरेज पर्सन को बढ़ी हुई नेशनल इनकम का कुछ पोर्शन गेट नहीं होता
तब तक किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। क्लियर है? यानी कि डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ग्रोथ, और यू कैन सी चेंज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द कंज्यूमर, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंज्यूमर, और यू कैन से पैटर्न ऑफ द कंज्यूमशन ऑफ द कंज्यूमर। अगर ये चीज़ें चेंज हो रही है, इट मीन्स उस इकोनॉमी में क्या हो रही है, डेवलपमेंट। जैसे हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, अभी तो कोविड में तो थोड़ा सिचुएशन अलग तरह की है, लेकिन हमारी इकोनॉमी में अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और पर कैपिटा इनकम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब हर एक कैटेगरी के, हर एक लेवल के पर्सन को क्या होगा, उस बढ़ी हुई इनकम का, ग्रोथ का बेनिफिट गेट होगा। गिफिन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज, एज आई टोल्ड यू इन द यस्टरडे क्लास, आपको बताया था, गिफिन गुड्स आर ऑल दोज गुड्स इन विच प्राइस इफेक्ट इज पॉजिटिव एंड इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। लेकिन जब गिफन पैराडॉक्स क्रिएट होता है तो उसमें इन दोनों में से एक चीज़ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गुड्स जो है गिफन बनता है। तो कौन सा वो सिचुएशन है, ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, यानी कि गिफन पैराडॉक्स तब है जब इनकम इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज़्यादा है, इक्वल टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लेस देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्या हो सकता है आंसर? देखिए, गिफिन तब होता है जब प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है और इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये डीपली हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि कोई भी गिफिन गुड्स तब गिफिन पैराडॉक्स को बर्थ देता है जब इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, लेकिन जो इनकम इफेक्ट है, इनकम जो इफेक्ट है, यानी कि जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ग्रेटर होता है, तब गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है, अराइज होता है। अब समझिए इसको कैसे अराइज होता है। देखिए, इनकम इफेक्ट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इनकम बढ़ी तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, या इनकम कम हुई तो डिमांड बढ़ गई, यानी कि रिवर्स रिलेशन है इनकम में और गिफिन गुड्स में, ट्रू है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि आप एक को छोड़ के दूसरी चीज़ खरीद सकते हैं। अब आपको पता है गिफिन गुड्स में हम जो सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हैं वो लोवेस्ट सब्स्टिट्यूट है। वो क्या है, लोवेस्ट सब्स्टिट्यूट है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसी को अगर भूख लगी है तो ब्रेड उसके पास लास्ट ऑप्शन है, उसके बाद उसके अलावा कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो गिफिन पैराडॉक्स तब अप्लाई होता है जब आपका जो इनकम इफेक्ट है, यानी कि जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, कंज्यूमर की जो इनकम है बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वो दूसरे ऑप्शन उसके पास अवेलेबल ही नहीं होते। जब दूसरे ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होंगे तो उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, और यू कैन से नॉमिनल होगा, नाम मात्र का होगा। तो वो ऐसी सिचुएशन होगी जहाँ पे इनकम इफेक्ट जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर हावी हो जाएगा, जिसकी वजह से कमोडिटी का नेचर कैसा हो जाएगा, गिफिन। उसी को गिफिन पैराडॉक्स कहते हैं। तो गिफिन पैराडॉक्स क्या है, व्हेन नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज मोर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। बताइए क्लियर है कि नहीं? गिफिन का मतलब समझ आ गया कि ऐसी कमोडिटी जो स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स है, जिसका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है और प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। लेकिन क्योंकि इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इसलिए जो इनकम इफेक्ट है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के ऊपर हावी हो जाता है। क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो नॉमिनल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, हमारे पास कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है। तो ऐसी चीज़ ही गिफिन गुड्स को जन्म देती है, जिसको हम कहते हैं गिफिन पैराडॉक्स। बताइए क्लियर है कि नहीं? तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ये 11th-12th लेवल से नहीं होते, ये ग्रेजुएशन लेवल से पिक किए जाते हैं। 10 से 12% ऐसे क्वेश्चन हैं जो 11th से पिक किए गए। इकोनॉमिक के जितने भी क्वेश्चन हैं 80% क्वेश्चन जो है वो 11th-12th से पिक करे जाते हैं, 20% ग्रेजुएशन से उठाए जाते हैं।
अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। जैसे देखिए हमने डिमांड की कंसर्न में बात की, इसी तरह से सप्लाई में भी होता है। अगर सप्लाई कर्व जो है शिफ्ट होता है, ये सप्लाई कर्व है सपोज, अब सप्लाई कर्व अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या होगा, प्राइस सेम रहेगा, सेम प्राइस पे सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसे क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। अगर सप्लाई कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो सेम प्राइस पे सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। लेकिन अगर एक ही सप्लाई कर्व पे बात करें, यहाँ पे आप इस सिचुएशन में हो, प्राइस जो है, प्राइस हो गया ज़्यादा, आपको पता है सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव होता है, प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस होगा प्रोड्यूसर उतने ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट होता है। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। यानी कि आपका अपवर्ड मूवमेंट सप्लाई कर्व पे क्या कहलाता है, एक्सपेंशन, और डाउनवर्ड मूवमेंट क्या कहलाता है, सप्लाई कम होना, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। अब इससे पूछा है अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विथ सेम सप्लाई कर्व। अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट को क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो आपने अगर नोट्स पढ़े होंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट फिर भी मैं क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट फील हो रही है वहाँ मैं चीज़ें बताती चल रही हूँ आपको। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन देखा है, कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उठाता है तो इस क्वेश्चन को उठा लेता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी लोगों के मन में डाउट भी होता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर इसको गेट होगा कि आंसर इसका वही है जो हम पहले सोचते थे किसी और बंदे ने दिया है, लेकिन वो सबसे पहले लॉ किसने दिया था, गूसन ने दिया था। वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ आंसर के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गूसन फर्स्ट लॉ। गूसन फर्स्ट लॉ किसे कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। देखिए सबसे पहले, यानी कि जो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, हमारे अकॉर्डिंग ये प्रोफेसर मार्शल ने दिया, जो कि हम 11th-12th में पढ़ते हैं। लेकिन प्रोफेसर मार्शल से भी पहले ये जो लॉ है ये गूसन दे चुके हैं। गूसन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखोगे कई बार क्या लिखा होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय, वहाँ पे गूसन भी होता है और प्रोफेसर मार्शल भी होता है। तो आपको किस पे जाना है इस सिचुएशन में, गूसन पे। मार्शल को टिक नहीं करना। हम जब 11th-12th पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में मार्शल रहता है, मेरे दिमाग में भी था। जब कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी तो पता चला कि मार्शल ने सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट नहीं किया। और इसका जो सेकेंड लॉ है उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इसको बोलते हैं गॉसन सेकेंड लॉ। ये बताइए क्लियर है कि नहीं, ठीक है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो तो आपको याद ही होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, अगर आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ी हो नोट्स की, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वन प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ थर्ड प्रोडक्ट। इस तरह से सब ये आपस में इक्वल रहते हैं, डैश 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 जितने भी प्रोडक्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ एन प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट। इसको डिटेल में पढ़ लेना, स्टिल नहीं समझ आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो पता ही है कि एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। A rectangular hyperbola shaped demand curve on all its point has, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर शेप है तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो कैसी होगी, ये भी एक थोड़ा क्या कौन सी होगी, ए इक्वल स्लोप ऑफ प्राइस
डिमांड कर्व. एनी अदर? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसी वो होती है वो पता है शेप? हम जो ये शेप बनाते हैं डिमांड कर्व की, इसी को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं. इस तरह से जो घूम के बनती है, सीधे ना बन के जो कर्व बनता है और सीधा हो जाता है एक पॉइंट के बाद, तो उसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं. अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप ऑफ डिमांड कर्व ऑन ऑल इट्स पॉइंट, उसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी? यूनिटी होगी. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे घूम के फिर सीधा हो जाता है, क्योंकि एक ही जैसी शेप हो जाती है उसकी, तो इलास्टिसिटी उसमें चेंज नहीं होती है. तो हम थ्योरेटिकली और टेक्निकली उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी यूनिटी. इसमें नॉर्मल वाला जो जनरल कंसेप्ट है इलास्टिसिटी का वो अप्लाई नहीं होता. ये ध्यान रखना. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में जो इलास्टिसिटी है हर एक पॉइंट पे वो कैसी होगी? इक्वल टू 1 और यूनिटी होगी. और बाकी पे चेंज होती है, आपको पता है मिड में इक्वल टू 0, ऊपर ग्रेटर देन इन्फिनिटिव और नीचे की तरफ लेस देन और 0. ये थे आज के क्वेश्चन. नेक्स्ट का टारगेट है, मैं भी उसमें ग्रुप में लिख दूंगी, उन चैप्टर्स को रीड करने की कोशिश करना. मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी नेक्स्ट क्लास से पहले, तो उसके भी पहले एमसीक्यू करेंगे, पहले आपके डाउट लेंगे. अगर डिस्क्रिप्शन में कोई क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, स्टिल साथ के साथ पढ़ते जाओ, क्योंकि आपके एंड से मुझे कमियां लग रही